Good morning, students. Now in this lecture, as you can see, we'll start with priority-based scheduling. This is the fifth type of scheduling algorithm that we'll be discussing in this lecture. As you can see on your screen, priority-based scheduling में processes are scheduled according to their priorities. That is, the highest priority process is scheduled first. In some of the systems, the lower is the priority number, the higher is the priority. That is, agar out of the priorities 1, 2, 3, 4, 5 processes are there, so the process with the priority number 1 will be considered as the process with the highest priority, and the process with the priority number 5 would be considered as the process with the lowest priority. While in others, the higher the number, the higher will be the priority. That is depends on different systems. We'll be considering the first case. The processes with higher priority among the available processes is given the CPU. If the priorities of the two processes match, then the schedule according to the arrival time, that is on the FCFS basis, first come first serve basis, in case if the two processes have the same priority numbers assigned to them. Priority scheduling, as you can see, can be of two types. One is preemptive and one is non-preemptive. Preemptive priority scheduling may, once the process has been scheduled according to the priority number, and meanwhile the process is executing in the ready queue, suppose a new process enters but with a lower much higher priority value. ओके सो अगर किसी दूसरे प्रोसेस की, नए प्रोसेस की प्रायोरिटी जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस जो करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है वो सीपीयू से हटा दिया जाएगा, और जो नया प्रोसेस अभी रेडी क्यू में आके लगा है जिसकी प्रायोरिटी करेंट प्रोसेस से ज़्यादा है, will get the priority and will CPU will be allocated to that process. That is preemptive priority based scheduling. दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में, एज यू कैन सी, व्हाट हैपेंस इज वंस द प्रोसेस हैज बीन शेड्यूल्ड ओके अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर, अब उससे कोई भी सीपीयू वापस नहीं ले सकता जब तक कि वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बेस्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. In this lecture, we'll be discussing about non-preemptive priority scheduling. Okay, now as we can see, in non-preemptive scheduling, priority-based scheduling, processes are scheduled according to the priority number assigned to them. Once the process gets scheduled, it will run until the completion. This is what I said right now. शॉर्टकमिंग क्या होती है बेसिकली प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का? प्रॉब्लम एक ये है कि स्टारवेशन अकर्स इन द प्रोसेसेस, विच मीन्स लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस नेवर एग्जीक्यूट्स एंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज एजिंग. ओके, जो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू लो है, दैट इज नंबर हाई है, राइट, तो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को कभी भी सीपीयू अलॉट ही नहीं होता और उसका जो वेटिंग टाइम है वो एंडलेस हो जाता है. तो दैट इज नोन एज स्टारवेशन. Okay, that is the problem of priority based scheduling. Now in the given question, as you can see, there are 7 processes P1 से P7 and the priorities arrival and burst time are given in the table. The table is over here, as you can see on your screen. This is the table जिसमें कि आपको प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, राइट. अब अकॉर्डिंग टू दिस, ये 3 में आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस विद द लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर इज 2 एट द 0 टाइम अराइवल टाइम पे एक ही प्रोसेस मेरी क्यू में आके लगता है, प्रोसेस आईडी 1 विद द प्रायोरिटी 2. तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, सीपीयू इसी प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है अगले 3 सेकेंड के लिए, ठीक, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड के लिए, मिली सेकेंड के लिए सीपीयू इसको एलोकेट हो गया. अब जब तक ये एलोकेट हो रहा है 0 से 3 तक, आप देख सकते हो ये अगले 2 प्रोसेस भी क्यू में आके लग गए, अराइवल टाइम 2 और अराइवल टाइम 1. तो मीनवाइल प्रोसेस 1 इज एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेस 2 और 3 भी क्यू में आ गए. 2 और 3 जब क्यू में आए तो ये देखा गया कि द प्रोसेस नंबर 3 विद द प्रोसेस आईडी 3 इज द प्रोसेस विद द नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी. तो प्रोसेस 1 के बाद जो सीपीयू अलॉट होगा वो किसको होगा, प्रोसेस 3 को होगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रूल. और अगले 4 सेकेंड के लिए सीपीयू किसके पास चला जाएगा, P3 के पास. तो अगर इस बेसिस पे हम गैंट चार्ट बनाएंगे तो पहले 3 सेकेंड के लिए P1, अगले 4 सेकेंड के लिए P3, अब टिल 7th सेकेंड, ओके, अराइवल टाइम 7 तक आप देख सकते हो सारे प्रोसेसेस क्यू में आके लग चुके हैं.
right? Ab out of all the rest of the processes, you can find that process ID 6 with the priority number 4 is the next in the queue with next higher priority. तो इसका अराइवल टाइम 4 सेकेंड है, तो 7 सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड के लिए CPU किसको अलॉट हो गया? P6 को. अकॉर्डिंगली ये गैंट चार्ट में P6 आके लग गया. अब P6 के बाद नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी किसकी है? यू कैन सी P4 की, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है. तो P6 के बाद P4 को अलॉट हो गया प्रोसेसर, तो 11 से लेके 13 सेकेंड के लिए प्रोसेसर किसके पास चला गया? P4 के पास. नाउ आफ्टर P4 द 6th प्रायोरिटी नंबर इज ऑफ प्रोसेस ID 2 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 है. तो 11 के बाद अगले 5 सेकेंड के लिए 18 सेकेंड तक P2 को अलॉट हो गया. एंड P2 के बाद नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी is 7, that is process ID 5 with a priority number 7. तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 9 सेकेंड है. तो 18 से लेके 9 सेकेंड दैट इज 27 मिली सेकेंड तक P5 के पास प्रोसेसर चला गया. और लास्ट में बचा प्रोसेस ID 7 विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 10. तो इसकी क्या हुई? लोएस्ट प्रायोरिटी हुई. हायर इज द प्रायोरिटी नंबर, लोएस्ट इज द प्रायोरिटी. तो इस रूल के अकॉर्डिंगली P7 इज द लास्ट प्रोसेस टू बी शेड्यूल्ड इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड इसका एग्जीक्यूशन टाइम 10 है. तो 27 से 37 मिली सेकेंड तक P7 को CPU अलॉट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एंड द सिनारियो वी हैव प्लॉटेड दिस गैंट चार्ट. From this Gantt chart, I can calculate the waiting time and the turnaround time of the processes in my CPU using this formula given to us. Turnaround time is equals to completion time minus arrival time, and waiting time is equals to turnaround time minus burst time. So that would be the waiting time of the process. So इसका explanation जो भी अभी मैंने explain किया, I have already given to you over here in this form. सो अकॉर्डिंगली आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये आपका चार्ट बन जाता है. आपका कंप्लीशन टाइम क्या है? अराइवल टाइम, ठीक, और आपका बर्स्ट टाइम. आप 0 टाइम पे अराइव हुए, आपका बर्स्ट टाइम 3 था, आपका कंप्लीशन टाइम 3 हो गया. नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल 3 हुआ, अराइवल टाइम 1 था, ठीक, बर्स्ट टाइम उसका 4 था. तो उसने टोटल 4, तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम लगना ही लगना है, प्लस उसका वेटिंग टाइम भी काउंट होगा, राइट. रिस्पॉन्स उसको कितने सेकेंड के बाद मिला? 3 सेकेंड के बाद मिला. इज दैट ओके? तो 3 सेकेंड उसको वेट करना पड़ा ना अपने टर्न के लिए. तो 7 + 3 दैट इज 10. तो 4 + 3 दैट इज 7. ये इसका कंप्लीशन टाइम आया. इज दैट ओके? तो दैट कम्स आउट टू बी बर्स्ट टाइम प्लस रिस्पॉन्स टाइम, और रिस्पॉन्स टाइम आपको गैंट चार्ट से मिल जाएगा. नेक्स्ट इसी तरह टर्न अराउंड टाइम आप निकाल लेंगे और उसका वेटिंग टाइम निकाल लेंगे जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है. तो जब आपका सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकल आएगा, उसमें से आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे. दैट वुड बी द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम विच इज़ रनिंग ऑन नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. So this is how I've completed a question on non-preemptive priority based scheduling. Next, preemptive priority scheduling I'll be discussing in my next live session, that is scheduled for tomorrow. I hope the question would be clear to you. Today I'll be sharing this PDF with you. Just go through it. Okay, so that once we discuss the chapter tomorrow, you may ask your doubts or queries if there are any. That's all for today. Thank you.